अच्छा भाई, this is a very simple question. You have to just find the relative atomic masses, and you are given three peaks. So you know the relative atomic mass of each of the you have to find the relative atomic mass. You know the mass of all these three isotopes: 112, 114, and 115. You just have to find the average using these percentages. So the first one is 3%, 3%, 3 over 100 into 112, and 56%, 56 over 100 into 114, and 41%, 41 over 100 into 115. That's how you will get the relative atomic mass. This is the simple question. अच्छा, अभी हमें कुछ इसके जो ट्रिकी क्वेश्चंस इन्होंने एक दो बार डाले हैं, वो जरूर देखने हैं। बेसिकली ये जो फाइल मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये मोल्स की फाइल है, ठीक है। तो इसमें आपके पास मोल्स में ही इंक्लूड होता है ये चैप्टर। तो सॉर्ट ऑफ वी हैव जस्ट एंटर्ड इनटू द चैप्टर मोल्स। सो अभी देखते हैं, खैर डिस्कस करते हैं। बट फॉर दिस क्वेश्चन, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड गोल्ड इज शोन। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन फॉर मास स्पेक्ट्रोमीटर। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एक चीज गलत कर देते हैं। दे हैव गिवन यू द परसेंटेज अबंडेंस, and they are asking you to find the expression to calculate the relative atomic mass of copper only. Okay, if you see these three peaks, first peak we can identify as that of the isotope of copper, which is 63. The other isotope has a mass 65, which must also be of the isotope of copper element, right? But if you see the third peak, it has a mass to charge ratio of 197. So can you say this is another isotope of copper? Not possible, right? Copper has an average value of the relative atomic mass of 63.5. If you see the periodic table, the relative atomic mass of copper is already given, right? Which is 63.5. But if you see your gold element, its relative atomic mass is 197. So do you think that this third peak is of the third isotope for copper? Not possible. Okay, let's say if you do not have the periodic table, still you cannot just say that copper has three isotopes, one with the mass number 63, one with the mass number 65, and the third isotope with the mass number 197. This won't make any sense because the relative atomic mass of copper may change. Different isotopes of copper may have different masses, but the atomic number of copper will never change. Atomic number of copper is 29. It will stay 29. It means a copper atom or the nucleus of copper atom must have 29 protons. So can 29 protons can hold this much number of neutrons? मतलब 197 में से अगर if you just subtract 29, still it has 168 neutrons. So this won't be possible. क्योंकि इतने सारे न्यूट्रॉन्स इतने ज्यादा नहीं हो सकते as compared to protons. So this means this is not the isotope of a copper element. साथ में उसने बता दिया ना गोल्ड है, तो गोल्ड की भी तो किसी आइसोटोप की पीक आनी है। अब गोल्ड की एक ही पीक आ रही है, इट मींस गोल्ड हैज ओनली वन आइसोटोप विद द मास नंबर 197. Now when they ask you to find the relative atomic mass of copper, it means you just have to include these two peaks. और जब देखो आपने, अगर मैंने आपको वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर का थोड़ा बहुत आइडिया इसलिए दिया था, वो सिलेबस में तो नहीं होता, मैंने आइडिया इसलिए दिया था कि हाउ डू वी एक्चुअली फाइंड आउट द परसेंटेज अबंडेंस और द अबंडेंस ऑफ एनी आइसोटोप। क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल्स आते हैं ना, हम ये काउंट करते हैं कि हाउ मेनी टोटल सिग्नल्स वी हैव, एंड आउट ऑफ विच पहले सिग्नल के कितनी काउंट्स आए, सेकंड सिग्नल के कितने काउंट्स आए, और थर्ड सिग्नल के कितने काउंट्स आए। सो वी हैव टू actually add up total number of counts, and when we have to take the percentages, we just take the ratio of the count of first signal divided by the total number of counts. So if this mass spectrometer is given the both the isotopes of copper and gold, तो इसमें इसने जो count rate लिया है वो तो सारे isotopes का ले लिया है ना। तो अब अगर मैं एवरेज मास कॉपर के निकालना चाह रहा हूं, तो सिर्फ कॉपर के आइसोटोप्स कंसीडर करेंगे और टोटल परसेंटेज भी इन दोनों ही आइसोटोप्स की कंपेयर करेंगे। अब इसमें आप ये 100 नहीं ले सकते। यू कैन नॉट से कि वी विल टेक द एवरेज लाइक दिस 56.36 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 63 फर्स्ट आइसोटोप का मास है। तो आप ये अब इस तरह से 100 यानी ले सकते हो, बिकॉज टोटल परसेंटेज इज बेसिकली इज इक्वल टू 100%, विच इंक्लूड वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ गोल्ड एलिमेंट एज वेल। अगर आप इन टोटल परसेंटेजेस को देखो, 56.36 प्लस 25.14 प्लस 18.5, दिस वुड गिव यू 100%।
तो अब आपने जो कॉपर के आइसोटोप्स का फ्रैक्शन लेना है ना, या प्रोपोर्शन लेना है या परसेंटेज लेना है, वो 56.36 डिवाइडेड बाय इन दोनों की टोटल परसेंटेज का लेना है। मतलब 56.36 डिवाइडेड बाय सम ऑफ 56.36 प्लस 25.14 multiply by the mass of isotope, which is 63. Second isotope has a relative abundance of 25.14, but you have to divide it by 56.36 plus 25.14 multiply by the mass is 65. You got it? तो अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डिनोमिनेटर इज सेम फॉर बोथ. So if you take the LCM, so it should be equals to 56.36 plus 25.14. And in the numerator, you will be left with 56.36 into 63 plus 25.14 into 65. तो क्या आंसर बनेगा हमारा? मैं दोबारा समझा देता हूँ. देखो, अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास लेने जा रहे हो और इस मास स्पेक्ट्रम पे एक से ज्यादा एलिमेंट के आइसोटोप्स है, तो आपने अगर कॉपर का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है या एवरेज मास निकालना है, तो आपने सिर्फ इन दोनों पीक्स को ही कंसिडर करना है ना. थर्ड पीक को तो आप कंसिडर करोगे नहीं, क्योंकि वो तो डिफरेंट एलिमेंट का आइसोटोप है. तो जब आप इन दोनों एलिमेंट्स को कंसिडर करोगे, तो जो टोटल फ्रैक्शन होगा वो इन्हीं दोनों एलिमेंट की परसेंटेज से निकालोगे. मतलब इन्हीं दोनों आइसोटोप की परसेंटेज से निकालोगे. आप उसमें दूसरे एलिमेंट की परसेंटेज इंक्लूड नहीं कर सकते हो. मैं अगर आपको कह रहा हूं कि हमारे पास एक सैंपल है कॉपर का, उसमें 56.36% जो है वो कॉपर है और 25.14% कॉपर का दूसरा आइसोटोप है, लेकिन वो परसेंटेज 100% नहीं बन रहा है. ठीक है. अब अगर आप उसको डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो वो गलत हो जाएगी बात. मतलब इन दोनों में से जो 63 वाला आइसोटोप है वो एक्चुअल में 56.36 इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि ये भी इंक्लूड हुआ हुआ था गोल्ड वाला आइसोटोप. तो इन दोनों के काउंट में से जब हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो 56.36 डिवाइडेड बाय इनका जो टोटल बनेगा उससे डिवाइड करोगे. अब समझ आई बात अहमद? सबको समझ आ गई भाई? ये एक डिफरेंट क्वेश्चन आया था, और जब ये आया था तो फिर अच्छे अच्छे बच्चे इसमें इस क्वेश्चन में फंस गए थे. तो अगर आप लोगों को अभी भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अगर किसी को कोई है प्रॉब्लम. बाकी मोस्टली क्वेश्चन जो है ना वो बड़े सिंपल है रिलेटिव मास स्पेक्ट्रम के. आपसे वो उसने डिफरेंट आइसोटोप्स दे दिए और उनकी रिलेटिव अबंडेंस दे दी. आपसे कह रहा है एवरेज निकालो. ज्यादा में ज्यादा कह देगा गिव योर आंसर टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो आपने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आंसर चूज करना है. तो ये एक दो क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं जो कि वाकई में चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे. और अगर आई थिंक एक और अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको करा देता हूँ, वरना वो आपके टेस्ट में आ जाएगा. नहीं, ये भी सिंपल वाला क्वेश्चन है. लेट मी शो यू वन मोर क्वेश्चन. इसका थ्योरी क्वेश्चन जो आता है वो भी दिखा देता हूँ किस तरह से आता है. ओके. Now this question says, in a mass spectrometer, some hydrogen chloride molecules will split into atoms. Not all the hydrogen chloride molecules, but some hydrogen chloride molecule will split into atoms. You guys know the formula for hydrogen chloride, which is HCl. And the mass spectrum of HCl is given.
The chlorine has two isotopes. The hydrogen involved here is the isotope 1 only. Matlab we are considering only one isotope of a hydrogen. However, hydrogen also have three isotopes. But for now in this question, we are just saying that hydrogen can just have an isotope of with the mass number 1. But chlorine can have an isotope with the mass number 35. Similarly, chlorine can have an isotope with the mass number 37 as well. Let's say if there is no breaking of bonds between hydrogen and chlorine, then we can get two peaks of these two different molecules, one with the total mass of 36 and one with the total mass of 38. तो दो peaks तो हमें इसकी मिल जाएंगी. But let's say if the bond between this hydrogen and chlorine is broken, then we can get one peak of hydrogen with the mass number 1. एक पीक हमें ये भी मिल सकती है ना, जो कि उसने शो नहीं की भी. He has started his values after this value 35 से स्टार्ट किया हुआ है. लेकिन एक पीक हमें क्लोरीन की ये वाली मिल सकती है 35 वाली, जिसमें क्लोरीन का मास 35 होगा. एंड वन ऑफ द पीक्स दैट वी कैन गेट इज 37 वाला क्लोरीन. The total we get how many peaks? We can get 5 number of peaks. But here we can see they have started the graph after the value of 35. उससे पीछे की जो है उसने हाइड्रोजन की जो पीक है वो नहीं शो की हुई है, तो मतलब वो हाइड्रोजन वाली पीक होगी ना जो शो नहीं हुई हुई है. But the remaining these 4 peaks, can you identify which peaks belongs to which particle? 35 वाला जो होगा वो ये वाला पीक है, क्लोरीन प्लस 35. और जो 36 वाला पीक है वो क्या होगा? It's a molecular ion peak. Here the chlorine has an isotope of 35 and hydrogen has a mass number of 1. ठीक है. और जो 37 वाला पीक है वो हमारे पास होगा क्लोरीन विद द मास नंबर 37. और जो आगे 38 वाला पीक है, लास्ट पीक है, वो भी एक मॉलिक्यूलर आयन पीक है विद HCl मॉलिक्यूल, और उसमें क्लोरीन होगा विद द मास नंबर 37. आइडेंटिफाई हो गई सारी पीक्स. क्वेश्चन में आगे उसने यही पूछना है कि पीक्स आइडेंटिफाई कर लो. विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक एज मास नंबर 35? तो इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे? यू हैव टू राइट क्लोरीन with the mass number 35 and make sure you write positive sign over it. पॉजिटिव चार्ज लिख दो, क्योंकि यूजुअली वो गलत कर देता है अगर आप पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखो, बिकॉज इन मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्शन होती ही तब है जब पॉजिटिव पार्टिकल बनता है, अदरवाइज डिटेक्शन ही नहीं होगी उसकी. और जो 38 वाला आइसोटोप है उसको कैसे लिखोगे? वी हैव हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एंड मेक श्योर टू राइट द मास ऑफ क्लोरीन विच इज 37. हाइड्रोजन का भी लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन उसका एक ही आइसोटोप है तो ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है. बट मेक श्योर यू राइट दिस पॉजिटिव चार्ज एट द एंड ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है. कुछ मार्किंग कीज में नहीं रॉन्ग किया हुआ उसने पॉजिटिव, लेकिन कुछ मार्किंग की में लिखा हुआ है कि पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मार्क्स काट लो. तो मेक श्योर यू ऑलवेज राइट दिस पॉजिटिव चार्ज. अच्छा, now he is saying use the relative heights of the peaks to determine the proportion of two isotopes of chlorine. Explain simply how you obtain your answer. अच्छा जी, if we see the two peaks of isotopes of chlorine, तो वो कौन सी दो peaks हैं भाई? एक तो ये वाली हो गई 35 वाली और एक हो गई 37 वाली. बाकी दो तो molecular ion peaks हैं. क्लोरीन का 34 वाला मास वाला आइसोटोप नहीं होता है. अच्छा, अब आपके ऑब्वियसली अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहो कि हमें नहीं पता क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, और बाय डिफॉल्ट आपको पता होना जरूरी नहीं है, सिलेबस डज नॉट डिमांड यू टू लर्न द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन. अब आपको नहीं पता, अब आपके सामने ये मास स्पेक्ट्रोमीटर आ गया या मास स्पेक्ट्रम आ गया, बस कम बस बात करते हैं ना, सबसे मुश्किल क्वेश्चन आ गया. आपने बोला कि हमें तो पता ही नहीं, किसी को भी नहीं पता क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, वन विद द मास नंबर 35 एंड वन विद द मास नंबर 37. चलो मान लिया आ गया क्वेश्चन. अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास एक क्लोरीन आया है जिसका मास नंबर 34 है, तो 34 पे तो पीक ही नहीं है ना हुजैफा, तो बात ही खत्म हो गई, तो 34 वाला आइसोटोप है ही नहीं. अब अगर कोई बच्चा कहे कि सर मुझे ये कैसे पता कि जो 36 है ये क्लोरीन का कोई तीसरा आइसोटोप है, या मैं आप कैसे मान लूं कि ये मॉलिक्यूलर आइन है, ये क्लोरीन का क्या पता कोई थर्ड आइसोटोप हो जिसका मास नंबर 36 हो. नहीं अहमद, हाइड्रोजन का आइसोटोप बेटा 3 होते हैं, और हमें वो याद नहीं करने, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि हाइड्रोजन इन्वॉल्व हियर इज ओनली वन आइसोटोप, तो हम उसको सिर्फ 1 लेके चल रहे हैं. क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ये बात. अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब मैं इस चीज को कैसे मानूं कि वाकई में ये मॉलिक्यूलर आइन है. अगर कोई बच्चा कहे
कि this is the third isotope of chlorine with the mass number 36. तो how would you reject his argument? कैसे कहोगे कि नहीं ये क्लोरीन का 36 वाला मास वाला आइसोटोप नहीं है? अगर तो ये क्लोरीन का 36 मास वाला आइसोटोप होता, जस्ट इमेजिन अगर ये होता, तो फिर आप इस पीक को बोलते कि ये क्लोरीन का 38 वाला आइसोटोप है। और अगर आप इन मासेस की बेसिस पे एवरेज मास निकालने जाते तो वो 35.5 थोड़ी ना आता, जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन है। समझ आ रही है बात? और अगर हमने सब मान लिया कि ये है, तो फिर मैं हाइड्रोजन को कौन सी पीक में इनकॉर्पोरेट करूंगा? जो मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड का बॉन्ड ही नहीं ब्रेक हुआ, तो फिर मैं उसमें को कौन सी पीक में लेकर आऊंगा? तो फिर तो कोई पीक ही नहीं बची मेरे पास। अगर मैं कह रहा हूँ क्लोरीन के 4 आइसोटोप्स हैं, तो फिर एक पीक मेरे पास ये भी आनी चाहिए थी, मॉलिक्यूलर आयन पीक, जिसमें क्लोरीन 35 हाइड्रोजन 1 है, 36 वाली पीक भी आनी चाहिए थी। फिर एक और, फिर मेरे पास एक जो है पीक ये वाली आनी चाहिए थी 37 वाली। फिर मेरे पास एक पीक ये आनी चाहिए थी कि जिसमें अगर आप कह रहे हो क्लोरीन का 37 वाला भी आइसोटोप होता है, तो एक ये पीक आनी चाहिए थी 38 वाली। ठीक है, फिर आप अगर आप कह रहे हो कि नहीं क्लोरीन का 38 वाला आइसोटोप भी है, तो फिर एक पीक मेरे पास 39 वाली भी आनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। सही है। थोड़ा बहुत अगर आइडिया है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। और अगर नहीं भी आइडिया, तो यहाँ से स्पेक्ट्रम को देख के आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि क्लोरीन के 2 ही आइसोटोप्स हैं। सही है, समझ आती है बात? अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में वैसे इतना मुश्किल होता नहीं है, ना कभी आया है क्वेश्चन, बट जस्ट टू जॉल्ट योर ब्रेन, आप इस तरह से सोच सकते हो। use the relative heights of the peaks to determine the proportion of the two isotopes. Now the two isotopes of chlorine, ये हम हटा देते हैं। अच्छा, जो टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन है उनकी पीक एक 35 वाली है और एक 37 वाली है। अब आप कैसे बताओगे कि इनकी जो रिलेटिव हाइट्स हैं वो क्या है? कह रहे प्रोपोर्शन बताना है, मतलब परसेंटेज बतानी है कि किस रेशियो में वो डिवाइडेड है। सो एक्सप्लेन सिंपली हाउ यू ऑब्टेन योर आंसर, और किस तरह से अपने आंसर तक पहुंचे हो आपको ये भी बताना है। देखो वैल्यूज तो अगर आप यहां से पढ़ने की कोशिश करो, और 37 वाली की वैल्यूज पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ना। इसी तरह अगर मैं ये वाली क्लोरीन की HCl की, जिसमें 35 वाले मास की वजह से पीक बनी है, उसको पढ़ने की कोशिश करूं। अब ये हम नहीं कह रहे कि आपने स्केल रख के जो है वो मेजर करना है, क्योंकि ये ग्राफ टू स्केल बना हुआ है या नहीं बना हुआ वो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है मुझे। तो मैं स्केल रख के मेजर नहीं करूंगा, आप लेंथ मेजर करके बता दो। until or unless if he says in the question that this diagram is measured with a scale, तो ही आप कर सकते हो, वरना आप स्केल रख के मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपने इनकी जो परसेंटेजेस है ना, जो रिलेटिव अबंडेंस है, वहां से आइडिया लगाना है। देखो ये वाली जो 35 मोलिकुलर आयन पीक्स है ना, वो मुझे ज्यादा अच्छा आइडिया दे रही है, क्योंकि अगर मैं ये स्केल रख के ये देख लूँ ना सिर्फ कि ये एग्जैक्टली सेंटर में आ रही है 90% पे, और ये वाली पीक जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में आ रही है 30% के, मतलब जो HCl विद द मास नंबर 35 है उसकी परसेंटेज 90% आ रही है, HCl विद द मास नंबर 37 जो है उसकी जो पीक आ रही है वो 30 पे आ रही है। सो दी percentage or relative abundance between HCl molecular ion peaks is 90% and 30%। ठीक है, किसकी? HCl आयन की जो लाइंस आ रही, तो इनका जो रेशियो बनेगा वो 3:1 बनेगा। तो दिस shows that chlorine with the mass number 35 is 3 times more than the chlorine with the mass number 37, that is they are in 3:1 ratio। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है हाउ डू यू फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, सो यू हैव टू यूज दीज रेशियोज। रेशियो कैसे यूज करोगे? अगर परसेंटेज यूज करना है तो 75/100 है। अब देखो इनका टोटल अबंडेंस कितना बन रहा है, 3 + 1 = 4। ठीक है, तो 3 ÷ 4 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 35, एंड 1 ÷ 4 मल्टीप्लाई बाय 37। मैं परसेंटेजेस क्यों नहीं यूज कर रहा? क्योंकि ऊपर जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें वो रेशियोज को यूज कर रहा है। रेशियोज निकलवाए तो इसका मतलब है कि वो रेशियो यूज कर रहा है। यूज योर आंसर टू सी। क्या सी में मुझे कहा था परसेंटेज निकालो? आप कहोगे ये जो 90 और 30% है, क्या मैं इससे निकाल सकता हूँ? इससे भी निकाल सकते हो, बट इससे रेशियो आप यूज करो 9 आपका 3:1 वाला।
गॉट इट? क्योंकि अगर मैं 90-30 यूज करूंगा तो वो टोटल 100 नहीं बनेगा। वो आपने क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन पीक के अलग परसेंटेजेस चल रही थी तो उसके हिसाब से लिया हुआ है उसको। 4 कहाँ से आया भाई? 3+1 टोटल फ्रैक्शन 4 होता है ना। देखो प्रोपोर्शन है, जैसे बचपन में फ्रैक्शंस पढ़ते थे ना, ये वही चीज है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 1/4 है तो 1/4 परसेंटेज निकालना होगा तो आपको 3 वाले का परसेंटेज निकालना है तो 3/4 परसेंटेज, ये 75 ही बनेगा। 3/4 इंटू 100 करो, 75 ही नहीं बनना है इसमें। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिकली कहा हुआ था कि सी का आंसर यूज करो, तो सी के आंसर में मैंने रेशियोज निकाले थे। हाउ कैन वी बी सो श्योर? बिकॉज यहाँ से हमने ग्राफ से पढ़ा है इसको 90% है। अब अगर ये 90% है और ये आपका 30% है तो ऑब्वियसली ये सिर्फ क्लोरीन के आइसोटोप्स नहीं है ना, इसमें कुछ और भी मिला हुआ है, क्योंकि टोटल परसेंटेज देखो 100 से ऊपर जा रही है। अगर मैं सिर्फ क्लोरीन क्लोरीन की बात करता तो उनकी परसेंटेजेस ऐड अप करता। अगर आपने इन परसेंटेजेस को यूज करके भी एवरेज मास निकालना है तो आप 90/100 नहीं करोगे, 90/90+30 करोगे। ठीक है, तो फिर अगेन वही वाली बात आ जाएगी, 35.5 ही आएगा। समझ आती है बात? थोड़ी सी मैथ्स है बस इसमें। रामीन एंड एमन एमन गॉट इट। रेशियो ही ठीक है। हाँ, उसने मांगा तो सिर्फ क्लोरीन का ही है, लेकिन मुझे पता है कि दोनों जो मॉलिक्यूलर आइंस हैं उसमें हाइड्रोजन तो कांस्टेंट है ना, तो जो भी इनके बीच में पीक का डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के दो डिफरेंट आइसोटोप्स की परसेंटेजेस की वजह से आ रहा है। गॉट इट रामीन? अगर इन केस आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने HCl से लेना है, वो मुझे ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा था मैंने ले लिया था। अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन बना लो, इन दो पीक्स को कंसिडर कर लो, अगर आप लोगों को मुश्किल हो रही है तो इट्स बेटर इफ यू कंपेयर दीज टू पीक्स। दिस इज 30 and the other one is in between 0 and 20, it should be 10, so this should be 30 and 10, again you will get 3:1। मंदशा, हमने क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 को ही यूज करके रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला है। अच्छा, आप कह रहे हो कि हम इन दोनों को यूज करके क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा, निकाल लो। मैं आपको बस एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाह रहा था चीजों का, कि हम उनको भी यूज करके निकाल सकते हैं। दीज परसेंटेजेस देखो, अगर आप ग्राफ देखोगे ना, एंड इफ यू जस्ट सी दी relative abundance or the height of this peak, this is exactly in between 20 and 30, so you would take it 30। आप इसको कि क्या 25 तो नहीं लोगे ना इसको? और जो नीचे वाली पीक आ रही है वो दिस इज एग्जैक्टली इन बिटवीन 10 एंड 20, 0 एंड 20, तो दिस शुड बी इक्वल टू 10। आप 9 और अगर 11 भी ले लेते हो तो फिर भी रेशियो राउंड ऑफ करके 3:1 ही बनेगा। गॉट इट मंतशा एंड हेमंत, यू गॉट योर आंसर्स? ओके। इसी तरह एक ये क्वेश्चन है, ये भी अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, ये वैसा ही है जैसे हमने पोटेशियम के लिए किया था ना, बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि दे हैव गिवन यू 3 ऑफ द आइसोटोप्स। तो आई वुड लव यू गाइस, आई लव टू गिव यू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, बट लग नहीं रहा होमवर्क हो रहा है। मेरे ख्याल से चेक करवाने पड़ेंगे होमवर्क, असाइनमेंट वगैरह पे चेक करवाना पड़ेगा। करा होता तो पूछा जरूर होता इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अभी आपने। अच्छा, इसमें चलो इसको देख लेते हैं। वी हैव 3 isotopes of silicon, one with the mass number 28, 29 and 30। A sample of silicon contains 92.2% of silicon 28। The total percentage abundance of silicon 29 and 30 is
7.8, इन दोनों की मिला के उसने 7.8% दिया हुआ है, और सिलिकॉन 28 का सिर्फ 92.2% दिया हुआ है। अच्छा हाँ, ये वाले सॉरी नहीं होंगे, ये मोल्स में, ये दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इन मोल्स। अच्छा चलो बताओ, इसका कह रहा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास आ रहा है 28.09, हाउ वुड यू सॉल्व इट? ठीक है, थोड़ी सी मैथ्स जरा ध्यान से करना है इसकी। परसेंटेज अबंडेंस निकालनी है सिलिकॉन 30 वाले आइसोटोप की, उनकी मिक्स करके तो दी हुई है उन्होंने 29 और 30 की, जो कि 7.8% है, बट आपने सेपरेट करके निकालनी है। सिलिकॉन विद द मास नंबर 30 की अगर मैं x% अज्यूम कर लूं, तो 29 की कितनी हो जाएगी? 100 माइनस एक्स, राइट? नहीं, 100 माइनस एक्स नहीं होगी, सोचो उसको थोड़ा सा। टोटल परसेंटेज 100 है, उसमें तीनों आइसोटोप्स हैं, तो तीनों का मिला के आपको कुछ करना पड़ेगा। सिलिकॉन 28 की तो 92.2% है, तो उसको 92.2% से हम लोग ले लेंगे। ठीक है, यस, इट शुड बी इक्वल टू 7.8 माइनस एक्स। अब नाउ यू नो 92.2% सिलिकॉन विद द मास नंबर 28 है, x% सिलिकॉन विद द मास नंबर 30 है, एंड 7.8 माइनस x% सिलिकॉन विद द मास नंबर 29 है, और इनकी एवरेज वैल्यू आ रही है 28.09। दैट्स इट, नाउ यू हैव टू सॉल्व फॉर x। कर लोगे इसको, आगे बढ़ा दें, किसी का कोई आंसर निकल रहा है तो बता दो, बस अलजबरा करनी है और कुछ नहीं है। मेक श्योर जब ये 29 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो सही से करना। ठीक है भाई, आगे बढ़े। गाइस, अच्छा भाई, सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। हम्म